لاہور میں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ جو تھرمل بجلی ہے ایک تو مہنگی ہے اور اس کے جو گردشی قرضے کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں, اور جب ان افورڈیبل بجلی ہوگی تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے, اور ساتھ ہی کیونکہ ہم دنیا جو ہے وہ ایک انتہائی کلائمیٹ چینج کے دور سے گزر رہی ہے, تو جو تھرمل بجلی آپ پیدا کرتے ہیں اس کی کاربن ایمیشنز بھی ہوتی ہے, اس کا کاربن فٹ پرنٹ بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو آج کی تقریب ہے وہ اہم ہے, اور جو مستقبل کی حکومتیں ہیں انتخابات ہونے کے بعد 8 فروری جمعرات کے دن انشاءاللہ انتخابات ہوں گے, تو اس کے بعد یہ اگلی جو پارلیمان ہے اور جو اگلی حکومتیں ہیں یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پالیسی کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ توجہ دیں جو متبادل ذرائع ہیں توانائی کے, تاکہ جو ہمارے جو امپورٹ بل جو ہے اگر 27 یا 30 ارب ڈالر اگر ہم صرف درآمد شدہ جو تیل ہے اس پر خرچ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو معیشت کا جو حال ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر اس تقریب کو منعقد کرنے میں, اور خاص طور پر عوامی جمہوریہ چین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت مدد کی ہے, یہاں جو ہمارے چینی بھائی اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں, اور جو چائنیز کمپنیز اس حوالے سے مدد کر رہی ہیں ان کا شکریہ. چین اس وقت متبادل توانائی کے حوالے سے دنیا کے لیڈنگ ممالک میں شمار ہوتا ہے, اور جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ اشتراک ہے وہ آگے بڑھے گا, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں معیشت کے ہیں توانائی کے ہیں ان پر ہم قابو پائیں گے. بہت شکریہ. فرمائیے گا کہ آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کیے, ان سے ملاقاتیں بھی کی تاکہ نگران حکومت جو ہے کہ غیر جانبدارانہ ماحول انتخابات کے حوالے سے دے, لیکن لگتا ہے کہ ایک بڑی جماعتیں جو ہے مائنس پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی کچھ تحفظات رکھتی ہیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, خاص کر کے پیپلز پارٹی تو آپ کا بھی بڑا پیار رہا ہے, وہ بھی کافی تشویش میں ہے. میرا پیار سب سے ہے بغیر کسی تفریق کے, اور جمہوریت قبرستان نہیں ہے کہ اس میں خاموشی ہو. جمہوریت اپنے جوہر میں اس میں آوازیں آتی ہیں, شور ہوتا ہے, مکالمہ ہوتا ہے, تو یہ شکایات تحفظات یہ جمہوریت کا حصہ ہے, اس پر بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت کے اندر لے دے ہوتی ہے, لین دین ہوتی ہے, تو اس پر بالکل بھی پریشان نہ ہو, اور شکایت کرنا لوگوں کا حق ہے, جماعتوں کا بھی افراد کا بھی, اس پر بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور ان شکایات کو سامنے بھی آنا چاہیے, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہوں, چاہے الیکشن کمیشن سے رابطے کی شکل میں ہو, چاہے عدالتوں میں ہو, یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نگران حکومت ہے وہ آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی اعانت کرے گی. الیکشن کمیشن کی جو موجودہ قیادت ہے وہ انتہائی ذمہ دار اور قابل لوگوں پر مشتمل ہے, اور ابھی تک جو انہوں نے نظام الاوقات دیا ہے وہ اس پر چل رہے ہیں, بہتر طریقے سے چل رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ 30 نومبر جو کٹ آف ڈیٹ ہے اس کے بعد شیڈیول جو ہے اس کا بھی اعلان ہوگا. اچھا سلنگی صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر پاکستان نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک انصاف کو اور عمران خان, انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تحریک انصاف اور عمران خان کو, آپ کیا کہیں گے؟ اس چٹھی کا جواب جو ہے وہ چٹھی سے دیا جائے گا, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن کل بھی میں نے کہا تھا, اس سے پہلے بھی, کہ صدر مملکت پورے ملک کے صدر ہیں, وہ کسی جماعت کے صدر نہیں ہیں, وہ تمام جماعتوں کے صدر ہیں, 25 کروڑ لوگوں کے صدر ہیں. تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا جو عہدہ ہے, آئینی عہدہ جو کہ وفاق کی علامت ہے, اس کی عزت کا خیال رکھیں. وہ ان کے لیے ضروری ہے,
बेहतर होगा कि वो किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने, वो सबके तर्जुमान बने, ये ज़्यादा बेहतर होगा। किसी एक जमात के तर्जुमान बनने से उनकी जो इज़्ज़त है उसमें कमी आती है। हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त बरकरार रहे। अच्छा सुलंगी साहब, जमहूरियत के इस हंसते बसते शहर में एक जमात को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ना उसके जलसे जुलूस करने की इजाज़त है, ना गवर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त है। जो सर उठाता है उसका सर कुचल दिया जाता है। इवन के आप जैसे अच्छे खासे लोग जो आवाम के हक में बोलते थे, मालूम नहीं जब कुर्सी मिलती है तो किस चीज़ का नाम आप आइन और कानून रख देते हैं कि आइन और कानून कुचला जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं। ये किसी सियासी कारकुन का मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सवाल बनता नहीं है। अच्छा सुलंगी साहब, ये फरमाइएगा कि हमने पीटीआई के 4 साल देखे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई और इक़्तिसादी जो इस्तेहकाम है मुल्क में वो नहीं आया। हमने पीडीएम के 15 माह देखे, ऐसी ही सूरत हाल है। अब हमने फिर उम्मीद लगा ली है कि एक नई हुकूमत आएगी, मुल्क होगी और फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामजन होगा। आपको लगता है कि ये तवक्कुआत हमारी दुरुस्त है? मैं हमेशा से एक रजायत पसंद शख्स हूँ, कभी भी नाउमीद नहीं होता। आपके आइन के प्रियम्बल में, तमहीद में, दीबाचे में लिखा है कि मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। हमें आइन के साथ वफादारी पर रहना चाहिए और अवाम की जो इज्तिमाई दानिश है उससे नाउमीद नहीं होनी चाहिए। कौमों की तारीख़ में मुश्किल मराहिल आते हैं, अदम इस्तेहकाम भी आता है, लेकिन उसी अदम इस्तेहकाम से इस्तेहकाम के रास्ते निकलते हैं। हर बहरान के अंदर उस बहरान से निकलने का बीज होता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी नाउमीद नहीं होना चाहिए और ये मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये मुल्क जो कि नौजवानों का मुल्क है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इस मुल्क को बेहतर रास्ते पर ले जाएंगे। साहब ये फरमाइएगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कबूलियत, एक होती है मकबूलियत। मकबूलियत वाली पार्टी को आपने हाथ बांध के कबूलियत वाली पार्टियों के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया है। क्या ये अवामी मैंडेट की तौहीन ना होगी? और क्या जमहूरियत है? ये आपका ख्याल है, हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा लगता है ऐसे है कि सब रास्ते, सब जो वास्ते हैं वो नवाज शरीफ के वास्ते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो अगले वज़ीर आज़म हैं? तमाम रास्तों का तयन पाकिस्तान के अवाम करेंगे। न मुझे न आपको ये तय करने का अख्तियार है कि रास्ते किधर जाते हैं। रास्ता वहीं जाएंगे जो पाकिस्तान के अवाम तय करेंगे। 8 फरवरी जुमेरात 2024। खड़े होते थे कि लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, लोग मुंतखब हुकूमत नहीं करते, कोई और करता है। जब आप हमारे जैसे सवाल करने वालों में होते थे, आज आप जवाब देने वालों में तो कुछ मौके पर नहीं हो सर आपका। हर खेल में हर किरदार अदा करने वाले जो एक्टर है उसको उस रोल के साथ वफादारी करनी आपका होती है। ये किरदार अच्छा है या वो किरदार अच्छा था? खेल के तमाम किरदार अहम होते हैं। अच्छा सुलंगी साहब ये बता दें कि मुल्क की जो मैशियत है, हमने माजी की 2 हुकूमतें देखी, एक 16 माह की, एक 3 साल की हुकूमत देखी। किस हुकूमत में फॉल्ट था जो मुल्क इस स्टेज तक आया? और दूसरा, माजी में जो जर्नलिस्ट हैं वो उर्दू पर भी रहे, निगरान वज़ीर आला भी रहे, वफाक में भी रहे, उन पर फिर इल्ज़ाम लगता रहा जो शफाफ इंतखाबात में 35 फ्रैक्चर का जो इल्ज़ाम था वो मशरूबा दीगर। इस हवाले से क्या प्लान आप कर रहे हैं कि कल को आप पर उंगली ना उठे? देखें, अगर आप ये सोचकर कि आप कोई अच्छा काम करेंगे और आप पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी तो फिर जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। इस डर से कि आप पे कोई उंगलियां उठेंगी, आप अपने ज़मीर के मुताबिक कुछ ना करें, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आपका ईमान ठीक है और अगर आप सिरात मुस्तकीम पर हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कहता है। आपको सुबह उठकर आईने में देखना चाहिए और रात को सोने से पहले सोचना चाहिए कि जो आप कुछ कर रहे हैं आपका ज़मीर मुतमईन है या नहीं है। बाकी जो फैसला है वो पाकिस्तान के अवाम करती है, तारीख़ करती है और तारीख़ के जो फैसले हैं वो अटल होते हैं। सुलंगी साहब ये रहनुमाई फरमा रहे
बताएं कि क्या गवर्नर हाउस में तमाम सियासी जमातों को मीटिंग्स का हक है या सिर्फ ये नवाज शरीफ का प्रेरोगेटिव है कि वो पिछले दिनों 4 घंटे 18 मिनट गवर्नर हाउस लाहौर में मीटिंग्स करते रहे हैं? क्या बाकी सियासी जमातों को भी ये हक है? कल आप मुझसे पूछेंगे कि ऐवान सदर में कौन कौन लोग गए थे, फिर मैं उसका क्या जवाब दूंगा। ये जो बात है इस पर मेरा तबसरा बनता नहीं। देखें, आप कुछ मफरूजे बता रहे हैं। लॉन्च किया गया, आपने किसी को लॉन्च करते हुए देखा है? जिस तरह वो आए हैं, कैसे आए हैं? जहाज में आए हैं। यही तासुर दिया जा रहा है जिस तरह वो आए हैं। और देखें, मैं तासरात पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। सीसीपीओ साहब ने उनको सलूट किया कि एक हाई कमिश्नर है, आप मुझे बता दें कि सलूट करने पर कौन सी पाबंदी है? मुल्क के जो अगर 3 दफा वजीर आजम रहे हैं उस पर सलूट करने पर क्या पाबंदी है? ऐसा करें कि आप मेरे साथ एक टॉक शो कर लें, वो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अब आपके सवाल खत्म हो गए हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमत पुरानी दरखास्त उठा के उनकी सजा माफ कर देती है। तो इस मुल्क में अदलिया भी आज़ाद है और मीडिया भी। अगर आप समझते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने कोई खिलाफ कानून काम किया है तो आप अदालत जाएं, अदालत में इसको चैलेंज करें। थैंक यू। लाहौर में वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया से बात कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। उनका ये कहना था कि तवानाई के शोबे में चीन ने भरपूर ताउन किया है। मुर्तज़ा सोलंकी का ये कहना था कि मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावार में चीन सर फहरिस्त है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुस्न है। निगरान हुकूमत आम इंतख़ाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। आम इंतख़ाबात से इक़्तिदार अवाम के मुंतख़ब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा। उनका ये कहना था कि नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।